Hello, dear students. I am Shalaka Deshpande. I have completed my master's in embedded system, and today I am going to take lecture on introduction to computer networks. So, without wasting much time, I will share the PPTs. Okay. So, show. Let me show. Okay. So, let's get started with the today's lecture. Now, the first thing when we talk about computer networks, which comes to our minds, is a lot of computers which are connected to a hub or any switch or a device. All right. So, what do you mean by computer network? What is definition of a computer network? Okay, that we are going to study what is meant by protocol, how the communication takes place between various devices in the computer network. That we are going to study today. In my previous lectures, I have uploaded few videos about various network topologies. You are requested to see those videos. Okay. So computer network. What is basically a computer network? Network is a communication system which supports many users. It is interconnection of two or more stations that wish to communicate. Now there are many users. They want to communicate with each other, and if they are in a different part of world, it is very difficult to communicate without the sophisticated internet technology. So basically, network. What do you mean by computer network? Computer network is a communication system. A communication system is a computer network. Okay. Okay. So each station in a computer network is called as node. तो जो communication system है कंप्यूटर नेटवर्क उसमें नोड्स होती है और वो नोड को हम स्टेशन भी बोलते हैं. ऑलराइट. सो बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम. Example of network is a telephone system. It is the largest and most sophisticated network of all. अब जो नेटवर्क है उसका एग्जाम्पल क्या है? टेलीफोन सिस्टम है. टेलीफोन सिस्टम क्या है? एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है, वायर्ड नेटवर्क है, एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन सिस्टम का. ओके. So computer network is a system which allows communication among computers connected in the network. जो computers है network में connected है उनके बीच में communication होता है. कैसे? कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशंस हैव बीन मर्ज टुगेदर. मतलब वो क्या रहा है कि कंप्यूटर्स को और कम्युनिकेशंस को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमको इंटरनेट एक फैसिलिटी मतलब मिलती है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से कंप्यूटर के थ्रू. ठीक है ना. Computer network is a group of computers and other hardware devices linked together through communication channels to facilitate communication and resource sharing among users. अब रिसोर्स शेयरिंग यानी जो भी फाइल्स है, डाटा है, अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरा ऑफिशियल डाटा किसी मेरे कलीग के साथ, तो मैं क्या करूंगी? इंटरनेट का यूज करके उसको फाइल ट्रांसफर कर दूंगी वाया ईमेल. ओके. तो जो कंप्यूटर्स है और हार्डवेयर डिवाइसेस है एक दूसरे के साथ लिंक की जाती है. मतलब दो पीसीस एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं चैनल के थ्रू. उसको हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं. ठीक है. Connection between separate computers can be done via कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अब यहाँ पे दिया गया है कि दो पीसीस को, दो कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. कॉपर वायर के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये इंटरफेस है जिससे हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. Each node in computer network is a computer. जैसे कि मैंने बताया जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कंप्यूटर नेटवर्क है और कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स होते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम जब भी नोड बोलते हैं मतलब कंप्यूटर का मतलब ही नोड होता है. ठीक है. Computers connected in the network share files, folders, applications, resources, scanners and webcams and printers. मतलब हम हार्डवेयर पार्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये सब चीजें शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. अगर हम अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग दुनिया के बहुत दूर अलग अलग पार्ट्स में भी है तो भी हम फाइल, फोल्डर, रिसोर्सेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं वाया कंप्यूटर नेटवर्क. एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट. कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट. इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है.
There are two types of transmission technologies used in computer network. जो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में वो दो तरीके की होती है। मतलब जो ट्रांसमिशन होता है डाटा का कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो दो तरीके से होता है। पहले है ब्रॉडकास्ट लिंक और दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। नाम में ही मीनिंग छुपा गया है। So broadcast network has a single communication channel that is shared by machines on network. Short messages called packets sent by machines are received by all users. मतलब जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है उसमें एक ही कम्युनिकेशन चैनल का यूज किया जाता है और वो कम्युनिकेशन चैनल्स नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स यूज करते हैं। एक मैसेज होता है जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसको हम पैकेट बोलते हैं। दो कंप्यूटर्स के बीच में जो मैसेज का शेयरिंग होता है वो पैकेट्स के थ्रू होता है, शॉर्ट मैसेजेस हम उसे बोलते हैं। तो ब्रॉडकास्ट यानी एक ही डिवाइस से पैकेट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं और एट ए टाइम सारे के सारे पैकेट्स सब नोड्स को ट्रांसमिट किए जाते हैं, सब कंप्यूटर्स को ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है। broadcast an address field within packet specifies intended recipient। जो पैकेट है उसमें एक एड्रेस फील्ड होता है। वो जो एड्रेस फील्ड है उससे हमको पता चलता है, कंप्यूटर नेटवर्क को पता चलता है कि रेसिपिएंट कौन है, कौन सा कंप्यूटर रेसिपिएंट है। ओके, अपॉन रिसीविंग पैकेट मशीन चेक्स एड्रेस फील्ड। जो रिसीविंग कंप्यूटर है जब वो पैकेट रिसीव करेगा तब वो एड्रेस फील्ड सबसे पहले चेक करेगा। इफ पैकेट इज इंटेंडेड फॉर रिसीविंग मशीन, मशीन प्रोसेसेस पैकेट। अगर वो मशीन का एड्रेस और पैकेट में का एड्रेस मैच होता है, मतलब जो रेसिपिएंट कंप्यूटर वो समझ जाता है कि पैकेट उसके लिए है, तो वो क्या करेगा, पैकेट की प्रोसेसिंग करेगा। इफ पैकेट इज इंटेंडेड फॉर सम अदर मशीन इट इज इग्नोर्ड। अगर जो पैकेट है उसमें का एड्रेस फील्ड मशीन के एड्रेस से मैच नहीं हो रहा है तो जो रेसिपिएंट कंप्यूटर वो समझ जाएगा कि वो पैकेट उसके लिए नहीं है, तो वो इग्नोर कर देगा। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मेनी कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पेयर ऑफ मशीन्स। अब ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या है, अभी अभी हमने ब्रॉडकास्ट नेटवर्क देखा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क अलग है। मतलब दो मशीन के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, मशीन की पेयर्स बनाई जाती है और उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दिया जाता है। टू गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट ऑन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क मे हैव टू विजिट इंटरमीडिएट मशीन। अगर मुझे सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट भेजना है तो बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट मशीन्स आ सकती है और उस पैकेट को उस इंटरमीडिएट मशीन्स के वाया डेस्टिनेशन मशीन तक जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं हमारे डेस्टिनेशन को हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, हम वहां रुकते हैं क्या, नहीं, हम हमारे डेस्टिनेशन पे ही रुकते हैं। वैसे ही जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी पैकेट को ट्रेवल करना है तो बीच में से बहुत सारी मशीन्स, इंटरमीडिएट मशीन्स थ्रू वो ट्रेवल करता है डेस्टिनेशन तक। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन विथ वन सेंडर एंड वन रिसीवर इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। अगर कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर एक ही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिकास्टिंग। सेंडर और रिसीवर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होना चाहिए और एक ही सेंडर होना चाहिए और रिसीवर भी एक ही होना चाहिए, तो उसको हम यूनिकास्टिंग कहते हैं। कनेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क। अब हम समझ गए कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। और ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं उसको हम इंटरनेटवर्क बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं एक सेंडर पीसी है और रिसीवर पीसी है, दोनों के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है मैसेज का वाया ट्रांसमिशन मीडिया। लेकिन आप ऊपर का डायग्राम देखोगे तो प्रोटोकॉल आपको दिखेगा। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, आप डायग्राम से ही समझ पाओगे। रूल्स मतलब अगर दो पीसीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉरफेयर होता था पुराने जमाने में, अभी भी वॉर होते हैं, तभी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किए जाते, कुछ रूल्स होते हैं वॉरफेयर के, वैसे ही कम्युनिकेशन के भी रूल्स होते हैं। जब दो पीसीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं तो ही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो पाता है। For successful communication, it is not enough for sender to simply transmit message and assume receiver will receive it. There are certain rules that must be followed to ensure proper communication. अगर हम सेंडर और रिसीवर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं तो एक रूल्स का सेट दोनों को फॉलो करना पड़ता है। Protocol is defined as a set of rules agreed upon by sending and receiving computer system to facilitate proper communication. जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो,
इसलिए कुछ रूल्स होते हैं और दोनों वो जो रूल्स है वो सेंडर और रिसीवर को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का रूल्स है कंप्यूटर नेटवर्क में उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके कंपोनेंट्स क्या है, किससे बना है भाई कंप्यूटर नेटवर्क? पहले तो इसमें कंप्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, फिर केबल्स, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक एज लिंक्स बिटवीन कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होंगे? केबल्स के थ्रू कनेक्ट होंगे। कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ये सब जो अलग अलग टाइप के केबल्स है इसके थ्रू कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड ऑन ईच कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड होता है जिसके थ्रू वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है। ठीक है। स्विचेस एंड अदर कनेक्टिंग डिवाइसेस, और बहुत सारे पीसीस को कनेक्ट करने के लिए हमें स्विचेस और राउटर्स और दूसरी जो डिवाइसेस है उसकी जरूरत पड़ती है। हम वो डिटेल में पढ़ेंगे जैसे हम आगे आगे जाएंगे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और पीसी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये क्या है? कंपोनेंट्स है कंप्यूटर नेटवर्क के। फिर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर शेयरिंग एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। बहुत बार क्या होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो वो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम कोडिंग करके उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। Communication from one computer to another, it allows exchange of information among users via network. अभी एक पीसी से दूसरे पीसी में कम्युनिकेशन करना, इसके लिए हमको कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, एक्चुअली वो यूजर्स है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं पीसी के थ्रू। फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, अभी एजुकेशनल पर्पसेस में आपको बहुत सारे पेपर्स एक्सेस करने हैं, रिसर्च पेपर्स एक्सेस करने, तो आप गूगल स्कॉलर का यूज करके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स एक्सेस कर सकते हैं। जब कब करोगे? जब इंटरनेट ऑन होगा, इंटरनेट कनेक्टेड होगा आपके पीसी से। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब था एप्लीकेशंस कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ओके, सो आई एंड माय लेक्चर हियर। Thank you for watching my lecture. I hope you have understood this. Please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Bye.